આવી જવાનું એનું ધામમાં. તમારા ડિમાન્ડના માણા દીકરા ગદ્દી થોડી ચાલી છે નહીં, મતલબ ચાલુ થાવી નહીં તો આપણે ઘણા મોટા હમત હતા તો હું મુંડા કહી દીધી તારમાં શક્તિ હોય તો આવી જવાનું મારા દીકરાનું. સાચું નહીં? મારા જો છે નિમાણ તમે વિડીયો ઘણા જોયા એક દીકરાના. સાચું નહીં? દીકરાના વિડીયો જોયો ને ભેડાવાનો એક નામ લઈને વિડીયો બનાવે છે. સાચું છે ને? ખબર છે ને દીકરા? તને એકો તો તારા જેવો દીકરો છે, એકો તારા જેવો બી છે. તો મેં એમ કીધું તારમાં શક્તિ હોય તો આવી જાય નહીં. મારા પાસે તારો દેવ મોટો છે યા હું જ મોટી છે ખબર પડી જાય. ઈ જગત એમ ટોટકા મોટકા ઉતાડે, જગત ધૂણાવે એ મારું સક્સેસ નથી થતું, હંમેશા પડતું રહે છે. બધે લઈ જાય દીકરા. એવા તો દીકરા મારા દીકરા પણ હું મારા દીકરાને તમે ખોટું ખોટું બોલ્યો છો. આવવાળા સમયમાં દીકરા પાણી તક નથી મળે હું ને દીકરા. જગત દેવના ચાળા કરાય પણ કાળકાના ચાળા નથી કરાય. હું દીકરા કેસ લગાડા ગયેલી થાણા પર ગઈ હતી. વાત એવી છું થાણા પર મારી પરચા આપીને આપી છે. થાણા પર ગયેલી મેં અભી બી થાણાદાર છે મારા પાસે યંત્રથી લગાવે માંડી. એવું તો થઈ ગયું છે કાર્ય કે કર. હા દીકરા કરું નહીં કે તો ખબર છે કે અમે સત્યના માર્ગ ફાલી રહ્યા. દીકરા દીકરા વિડીયો બનાવે એ તો બધા નેતાગીરી વાળા છે. હું તો મુંડા બોલું છું. એ તો તમે બહેમિત કરી રહ્યા છે. ત્રીજું બધા યુ છે નહીં એનું વિનું દીકરા वो भले वीडियो हाली रो मैंने वीडियो द्वारा मैंने दिखाऊं चैलेंज मारू देखो वो अपन मारवा फोन लगा यंत्र लगा था जो भेड़ापानो बनावे छे ने कोई भी छे वो દીકરો હાચું નહીં? હા તો કોઈ બી છે મેં તો ચેલેન્જ મારું બોલું છું. ખોટો મતલબ બીજાનો સપોર્ટ લઈને દીકરા મન કે છે કે ફલાણું ઢીમકું એવું છે એવું કરાવે દઉં તેવું કર. આવો ને મારા દીકરા આવો ને આ હું તમે મારા દીકરા એમ જ કહેતો છે વિને બાબો આવે છે રે હાચું નહીં? એટલા જ એમ કરે છે. તાંત્રિક થોડું જાણે છે. બાળનું બાકું નથી ઉગડેલું દીકરા મારા દીકરાનું. ખૂબ હવન ને બધે કરાવીને હું જગ જાણું કાળકા. ખૂબ હવન કર્યા તે ગદ્દી કરતા ફલાણું કરતા બાળનું બાકું નથી થાજ્યું છે. સમજી ગયો છે. ચૂપચાપ ઘરમાં જઈને ઘૂસીને બેસી ગયો છે. ખાલી જેટલું કાર્ય છે એટલું કરવાનું હોય બીને. વો જો છે એકબીજાને માણસ ભડકાવે છે. ભડકાવે કેવું કે એના ધૂણા ધાણું કર્યું કે એનું કંઈ કહી દીધું આ તમે તનું લેવું દેવું એનથી. અરે વિને તનું લેવું દેવું છે દીકરા. દેવ છે એવું રહેતી કા નાંગલવાડી બાબોને ખૂબ માને છે ને વहाँ બોકડા કુકડા મારે છે હારા વहाँ જઈને બંધ કરાડ. એ વિડીયો દ્વારા કહું છું વहाँ બોકડા કુકડા મારે છે દીકરી ખૂબ. હા મારે છે નાંગલવાડી બાબા કાઢે છે નહીં બલી દે છે ને વા બલી બંધ કરાડ દે. હાલ તારમાં તાકાત હોય તો તાકાત જ નથી કોઈમાં. બાબો બલી નથી માંગતો बस चौका भी लड़के इसने बोला मैं बलि मांगता हूँ रे मैं चौका हूँ. ये तो लोग अपने जो शरीर के होते खाने के भूखे होते मेरे तो फिर लोग मेरे पुत्र पे फालतू के आह्वान लगाते. अभी तक मेरे पुत्र ने किसी के पास 1 रुपया लिया क्या रे? तो फिर लोगों को तो बस दिखना चाहिए कि कौन क्या क्या कर रहा है किसे क्या उठ रहा है तो उसको गिराने लगते हैं लोग क्योंकि खुद की उसकी गद्दी है रे. मैं जो सब निमाड़ का राजा आता हूं मैं वहां पे आता हूं जग जानता हूं मैं. अकाल मृत्यु हो सकती है उस लड़के की ज्यादा अपने आप को होशियार समझा तो. हाँ देव भिलट मैं हूं पगड़ी वाला महाराज जानते हो ना मुझे. तो फिर उस लड़के को हमने चुनौती दी उस लड़के को हमने समझाया किया कुछ समझ नहीं आया क्या? समझना चाहिए गधे को कि अपने देव को कभी भी बड़ा साबित नहीं करना चाहिए. अरे मैं जन्मा हूं कोख से. अरे मैं जन्मा हूं क्या मेरे माता पिता से बड़ा थोड़ी हूं मैं. क्या मैं शंकर भगवान और पार्वती मैया से बड़ा हूं? तो फिर वो समझना चाहिए ना कि लड़के के शरीर में क्या आया था क्या नहीं आया था. ये तो समझा नहीं देखा नहीं बस कुछ भी बोल दिया उठपटांग. अकाल मृत्यु हो सकती है उसके. हाजरा और देव इधर बैठे हैं हम. उसके देव भी हम गए थे ना हम स्वयं गए थे उसके देव के पास. उसके देव हमको देख के भागते रहे. पता है ये देव अल्लाह की देव है. भूत रखता है भूत समझे ना तुम जो जोड़ जपाटे होते हैं साले वो रखते हैं. सब जानते हैं हम कौन क्या रखता है कौन क्या नहीं रखता. उससे कुछ नहीं होता. उससे तो आने वाली तुम्हारी जो समस्या है और वो बढ़ जाती है. अपने आप को किसी का मतलब
ये पहले तो वो पुत्र है ना, उसको मैं बताऊं, उसकी मतलब उसको ना पीछे बहुत सपोर्ट करते हैं लोग। समझ रहे हो तुम बात को? तुम्हारे निमाड़ में कुछ भी कोई बोल दे तो दो कड़ावा जानता है वो। अरे वो पहले तो पढ़ता है करता है, इसके बाद वो मुंह से बोलता है रे। उसको कुछ पता नहीं है, पहले बोलता है, सब देखता है किताब में कुछ भी लिखा हुआ, उसके पास किताब कापी सब वो बाबा की मेरी है ना, तो वो सब देखता है फिर बोलता है, तुमको बताता है वो। उसको तुम पूछ लो ना, मतलब ऐसे मतलब मेरे ऐसे पूछना कि मैं बड़ा हूँ या बाबा बड़ा है, कोई जग बड़ा है, फिर उसको बताए वो सवाल क्या देगा, फिर वो भी गधा ऐसा ही बताएगा, नहीं मेरा बाबा बड़ा है। ऐसा थोड़ी होता है। अरे मैं जन्मा हूँ रे, मैं क्या हूँ? जन्मा हूँ, मैं बड़ा थोड़ी हूँ। मैंने किस लिए जन्म लिया पता था तुमने? अरे राक्षसों का वध करने के लिए, काली शक्ति का। मैंने इसलिए जन्म लिया था। मैंने कोई किसी के लिए भेदभाव करने के लिए नहीं, मैं किसी के भेदभाव नहीं करता। कोई भी मेरे पास आ जाए, स्त्री आए या पुरुष आए, सभी में मैं एक समान हूँ। सभी में मैं एक समान हूँ। कोई ऐसा नहीं है तो कोई छोटा ना तो कोई बड़ा। लेकिन जो यहाँ पे धाम है, यहाँ की बात अलग है, निराली है यहाँ की बात। ये जो धाम है सत्य धाम है, मतलब शक्ति का धाम है ये, सती शिव का धाम है ये। तो यहाँ पे माँ की चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी रे, ना तो हमारी चलेगी, नहीं चलती यहाँ पे, हमारी भी नहीं चलती। मैं आता हूँ तो घिसराता हूँ रे। देखा था तुम्हें उस दिन चैत्र नवरात्रि भी देखा तुमने? यहाँ पे पुत्र को यहाँ पे छिला गया था पुत्र, इतने में रमा हक्का खेला, इतने करा, किसी में देव की ताकत नहीं है कि इसे घिसा घिसा के जाए और सब कुछ करे, सब घिसाया मैं। अरे मैं चाहता बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर ना कोई किसी पर बुरा नहीं। ऐसे ही मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों की बात मत सुनो। ऐसे लोग सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। दो बात अपने मुंह से बोलते हैं, बात सुनो, दो कड़ावे अपने मुंह से सच बोल देते हैं, लेकिन वो जग को बताएंगे, जग को अच्छा लगेगा तो जग और आगे जाएंगे। पर सत्य कोई नहीं जानता पुत्र यहाँ पे, मतलब जो सत्य है, मतलब सत्य मतलब अरे सत्य कोई नहीं जानता रही। जो हकीकत हकीकत कोई नहीं जानता। अब तुम आओगे तभी हकीकत जानोगे यहाँ पे। सच बात है ना पुत्री, सच बात है ना, हकीकत लोग तभी जानते हैं। उस पुत्र ने माँ को गाली दी, अरे तेरा नाश होगा, उसका नाश होगा, मैं लिख के देता हूँ। तूने माँ को गाली दी तो क्यों दी? क्या बोला? ढोंगी पाखंडी ऐसा वैसा। जबकि माँ ने ऐसा बोला था, पुत्र थोड़े शांति से बात कर, शांति से बात कर। नहीं, लींबू उठा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। उसको जानते हो? उसको जानते हो? मुझे जानते हो? मुझे जानते हो क्या? जानते हो ना मुझे? अभी ये घूंघट नहीं हटा सकता, इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि फिर जो यहाँ पे गद्दी का अपमान होगा। क्या होगा? अपमान होगा, इसलिए। वरना मुझे ये नहीं, मैं तो खुला हूँ, पता है ना। पर इस लड़के में, इसके यहाँ पे उधर में समाया हुआ हूँ, हाजराहुर में। किसे? हाजराहुर में। ऐसा नहीं थी मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ रे। मैं भी अपनी भभूति से उत्पन्न जो पेट में नहीं होता, मैं उसको उत्पन्न कर सकता हूँ। समझ रहे ना बात को? पुत्र पुत्र नहीं होते ना तुमको। पर यहाँ पे ये ऐसा करने लगे ना तो दूसरे में हम में फर्क कुछ नहीं रहेगा रे। मैं भी बोल दूं, कभी अभी मैं निमाड़ में बोल दूं, चल रे पुत्र, भिलट देव की गद्दी चालू हो गई, ऐसा बोल देना जब को, जाओ भिलट देव की गद्दी चालू हो गई। अभी तो पूरा निमाड़ आके घुस जाए, सच बात है, पूरा निमाड़ आके यहाँ पे घुस जाए। अरे वो तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं गद्दी मैं नहीं कर सकता। मैं भी जग जानता हूँ। सब दुख तुम परेशानी लेके आए हो, ऐसा कोई नहीं है दुख परेशानी नहीं लेके आता है, सब लेके आता है। मैं दाने गिनता हूँ रे, पता है ना, मैं दाने भी गिनता हूँ, दाने 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 से दुख बता देता हूँ मैं। इतने दिन में इतनी परेशानी, इतने दिन में इतनी परेशानी चलती है अपने घर में। जाओ, पर वो देव होते ऐसा ही बोलते हैं, घाट बहुत नहाने जाना पड़ेगा, घाट बहुत नहाने जाना पड़ेगा, है ना पुत्र। तो प्याला मत पीना, प्याले से तू भी जग में परेशान है, तेरे घर में परेशान है। अरे प्याले वजह से तू गिर गया है, शरीर में तुझे बीमारी भी है ना रे, है ना, शरीर बीमार तुझे। देखो अगर ये प्याला नहीं छोड़ेगा तो इसका भी कुछ खत्म हो जाएगा।
चौका भेड़ बोल रहा है ना पुत्र तेरे? इस शरीर में बीमारी चलती है ना तुझे? चलती है मेडिक। तो फिर ऐसा नहीं मिल जानता, हम दूसरे परिचय देने वाले दिए उसने। देखा ना तुम चमत्कार, बोला ना उसने। फिर घर में तेरे पैसे तंगत से भी पुत्र बहुत कमजोरी लग रही है, पैसे तंगत तुम इधर उधर से उठक बैठक करते हो रे, पैसे 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 पैसे, और घर में किचपिच चलती रहती है बहुत। पुत्र चलती है इसकी किचपिच घर में। इसकी वजह से इसके पुत्र पुत्री है ना पुत्र? नहीं कुछ नहीं है, शादी नहीं हुई। तो फिर इस वजह से पुत्र ऐसे कोई बीमारी तो तुम घर में लेके बैठे हो, अरे परेशानी तुम घर में लेके बैठे हो, तो शादी कहां से होगी? क्योंकि शादी के पुत्र में बता दूं बहुत जगह इसकी हुई पर टूट गई, बहुत जगह हुई लेकिन टूट गई। मैं तो खुला बोलता हूँ रे, सच बात है रे। होती भी लेकिन एन टाइम पे पुत्र टूट जाती है। क्यों टूटती है? कुछ कारण है ना इसका। प्याला और लोगों की बातें, लोग जाके कोई गलत ही बात बोल देते हैं, पुत्री बोलते हैं ना पुत्र कि गलत बात है, ये ऐसा है वो वैसा है, प्याला बहुत पीता है, ऐसा कारनामा करता है, वहाँ पे घर में कोई अच्छा नहीं रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो वहाँ पे पता चलता है तो खत्म। सच बात है। ये तेरे जीवन में परेशानी चल रही है और तू बहुत मतलब ये है ना तड़प बहुत रहा है प्रेम के लिए। सच बात है, प्रेम के लिए तू बहुत तड़पता है, हृदय में प्रेम है ना पुत्र तेरा जो किसी और के लिए, मतलब तू किसी और को देख देख के तड़पता है। ये समझ बात है, आई ना इसको? तड़पता है तू प्रेम के लिए, क्योंकि तुझे मिलता है तुझे क्यों? ए पुत्र मैं तो बताओ दूर है, तू भी जहाँ भी जाता है वहाँ भी स्त्री जो लड़की होती है तुझे देखकर मतलब भ्रमित हो जाती है कि हाँ ना करती है। सच बात है पुत्र, क्योंकि इसका बर्ताव कुछ अलग है, इसका रहन सहन कुछ अलग है। रहन सहन को बदल पुत्र, हो जाएगी। रहन सहन को बदलेगा तभी होगा, कोई तंत्र मंत्र विद्या वाला काम नहीं देगा। क्योंकि आजकल ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास बहुत आते हैं रे, मैं हूँ निमाड़ में हूँ राजा, है ना, बाबा के पास कि बाबा ऐसा वैसा नहीं हो रहा है, कुछ कर दो तो बाबा भभूत नहीं देता है, जब खा लो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। तो ऐसे को चिंता मत करना पुत्र, है ना। तो ये तेरा काम हो गया है ना। प्याला भी छूटेगा, जब छूटेगा। और कोई मुझे प्याला पी पी कर कोई भी आरती पूजा मत करना रे गधोन, सच बात है ना। आरती पूजा कर पार प्याला पी पी मुझे मत करना, मैं चौका हूं, मैं निमाड़ समझाने जाता हूं कि कोई भी ऐसे शराब दारू शराब मांस मच्छी ये सब मुझे नहीं लगते, ये मुझे नहीं लगते। अरे मुझे दूध लगता है, क्या लगता है? दूध लगता है, पान लगता है, पान सुपारी का भोग लगता है, मुझे लगता है ना रे। पान सुपारी अरे कहीं मुझे चढ़ाओ, तुम पान चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ, है ना, तो मुझे कुछ भी लगता है, पान लगता है या कोई दूध भी चढ़ता है मुझे तो अनेक मिठाई में तो सभी आते हैं रे भोग, है ना। लेकिन सबको पूछोगे तो फिर यही बताएगा पान लगता है। सच बात है ना। हाँ नंगलवाड़ी में देखो ऐसा ही पान मिले जाता है, कोई मतलब देखिए वहाँ पे पान चढ़ाते बहुत कम चढ़ाते रे, बहुत कम चढ़ाते हैं, भूल भी जाते हैं कहीं पे। पता रहे बाबा चढ़ा, हमको तो पता नहीं रहते चढ़ा। हाँ ऐसा है ना। पर जाओ मेरे शिखर धाम में जाओ, सतपुरा नंगलवाड़ी पहाड़ी में मेरे पुत्र, सतपुरा पहाड़ी में बैठा हूँ ना मैं। हाँ पगड़ी वाले महाराज, तो खूब जाओ आदर सम्मान से हर नंगलवाड़ी के दिन, और सबकी मैं मनोकामना पूर्ण करता हूँ रे। अरे नंगलवाड़ी का वासी हूँ मैं रे, हूँ ना। हाँ बाबा। तो फिर खूब जाओ, खूब आदर सम्मान से करो मेरी पूजा पाठ, पर मांस मदिरा खा के मुझे आज के बाद कोई करेगा नहीं। जो कोई मुझसे प्रेम करता है मांस मदिरा खा के दूर रहेगा, वरना मैं उसको काट लूंगा। फिर बोलना मत, मुंह मार दूंगा।
क्योंकि तुम ही खुद पाप करते हो और फिर तुम बोलते हो कि ये बाबा काट खाया मुझे, ये बाबा बाबा काट खाया, और फिर बाबा का दोष देते हो देते हो। अरे देखो ऐसा है कि देखो हम ऐसे तो हम किसी को नाम नहीं लेते हैं। हम तुम खेत में जाते हो, खलिहान में जाते हो, तो हम घूमते फिरते रहते हैं, है ना। हम किसी का नाम नहीं लेते। कोई भी हम पे जानबूझ के पुत्र पाव धर देता है या कोई भी, तो हमें क्रोध आता है रे, हमें क्रोध आता है। क्यों आता है? कि तुम हमारी छाती में पोक धरते हो। इंसान हमें मारता है, अरे हाँ, अरे हम किसी को मुंह नहीं मारते हैं। अरे अभी तक कोई जबरदस्ती किसी ने मुंह नहीं मारा रे, एकदम से वो अचानक आ जाए ना, फिर ये मुंह मारते हैं, वरना किसी को मुंह नहीं मारते हैं। कोई भी जैसे पुत्र, जैसे तुम अभी आए पानी पीने में आए, हम ठंडी जगह पर रहने वाले हैं, पता है ना तुमको, ठंडी जगह पर रहने वाले हैं हम, पता है ना, जानते हो। मुझे जग जानता है रे, ये जग मेरा है, पता है ना तुमको। शेषनाग हूं मैं, पता है ना, शेषनाग का उतारित हूं मैं, कोई ऐसा तो देव नहीं। तो ये कार्य करोगा, ये कार्य क्या थी, तुम कोई भी अपने घर में, मेरा फोटा तो घर घर में लगा भी होगा, है ना, लगाया ना मेरा फोटा, पगड़ी वाले महाराज का, है ना। तो फोटा मेरा हर घर घर में लगा है, लेकिन कोई भी शराब पीकर नहीं जाएगा, कोई भी दारू पीकर नहीं जाएगा, कोई मांस खाकर नहीं जाएगा, या घर में कोई बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, वरना तुमको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा मांस मदिरा खा के, वरना मेरी फोटो मत रखो तुम। हम तो मुंह से बोलते रही, मेरी फोटो मत रखो, तुम मत रखो कोई, तुम मांस मदिरा खाते हो पर हमारी फोटो रखते हो, तो एक सही बात है। कितना चौका हूं मैं, और मेरे वहां सिक्कर धंबे जाते हो तुम, और वो जब बकरे काट फेंकते हो, और ये बहुत गलत कारनामे है, हमें तकलीफ होती है। कोई नांगलवाड़ी से आ जाए तो मैं परिचय दूंगा, आ जाओ नीचे, वो आता नहीं कि आप बाबा को तुम करते हो, ये करते हो, गलत कारनामा है तुम्हारे साथ, मत करो ऐसा। किसी को वहां पे कुछ काटने को फेंकने को मत दो। अरे मान गुण तो पुत्र मिठाई की भी होती है रे, होती है मिठाई की, खाने की मिठाई की कुछ दाल बाटी की होती है ना, तो फिर वहां पे तुम क्यों करते हो? हर तुमको तो देवदाड़े ने कही तो कहीं को देवदार है, कहीं को तम बकरा अपनी इच्छा से हाँ पुत्र, कोई भी तुमको देवदानी नहीं बोलता है। तुमको पाना माता को तुम्हें दूषित कर दिया, ये पाना माँ है ना, ये तुमको मैं तो बोलता इसको दूषित कर दिया तुमने, कोई सत्य न रहा नहीं, क्योंकि काट काट कर वहां पे निर्दोषों की जान ले ली तुमने। अरे तुमको क्या माँ अपने माँ आई थी, या क्या माँ ने बोला था एक पापी नाव में डूबा सभी को डुबा के ले गया, एक पापी नाव में डूबा है वहां पे। अभी तो तुम्हारे निमाड़ में ऐसा हो गया है, बात सुनो, कि जहां जहां जैसे अभी मेरा धाम, हमारा धाम है, अगर आपको एक पापी ने कभी काटना चालू किया तो सभी पापी आएंगे। अरे वो तो बनी बात है ना, तो हमने यहाँ पे इसलिए बंद करवा दिया। हमें यहाँ पे कोई ऐसा मान लेता है, मान मतलब भगाऊं मुंडी काट दूंगा तेरी, तो मतलब कोई मैं गलत चीज से मान लेता है कि मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा, नहीं कुछ नहीं। फिर सिया बाबा तुम्हारा, अरे वो तो दानी पुण्य इंसान है, एक जगह स्थान कर गया था तो उसका बेड़ा पार लग गया था। सिया बाबा तुम्हारा कभी किसी ने खून नहीं पिया, किसने बोला था? किसी ने खून तो तुम्हारी माँ ने पिया है, सिर्फ तुम्हारी माँ ने पिया है खून, जो तुम्हारी गद्दी चलाती है ना रे, उसी ने खून पिया है, दूसरे देव ने खून नहीं पिया रे। तो फिर तुम क्यों करते हो ऐसा कर्म? अपन में हम निमाड़ में आए तो ऐसा नहीं, हर एक देव देखो, तुम अपना जो पाप पुण्य हो तुम निमाड़ में, बताना चाहता हूँ मैं, निमाड़ का राजा महाराजा है ना, पगड़ी वाला महाराज, बोलो चौका भिलट की। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं तुमको लिख के दूंगा, अगर तुमने कुछ भी ऐसा कर्म किया मेरे शिखर धूम पर या मेरे मंदिर में या मेरा कुछ भी तुमने ऐसा किया, तुमको भुगतना पड़ेगा। ये इस वीडियो के द्वारा जगत में जाना चाहिए, और कोई भी अपने देव के ऊपर या कोई भी अपने मतलब सम्मान के ऊपर कोई भी अपना बुरा या भला नहीं करेगा, और अपना अपना देव अपना होता है, किसी और का नहीं। तो अपने देव को अपने तरफ रखना चाहिए, दूसरे देव को दूसरे तरफ छोड़ देना, क्योंकि तुम तो ऐसे हो कि अपना देव को बहुत महान समझते हो ना रे। अरे तुमको किसी को देव आता है पर वो उस देव को महान समझता है, पर ऐसा नहीं है, सभी हम ही है। हम पाप पुण्य देखते रहे, आज नहीं तो कल तुमको मिलेगा। अगर तुमने गलत किया है पुत्र, भले तुमको देव आता हो, तुमको भुगतना पड़ेगा।
हम नहीं आए, आना बंद हो जाएंगे। लोग बोलते हैं ना वे देव क्यों नहीं आते रहे तुम्हारे निमाड़ में, बार बार नहाने जाते हैं, ये कहने क्यों नहीं आते हैं? कुछ कारण है इसका। तो कारण है कि मांस, मदिरा और ये भूत पड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जोड़ जपाटे रहते, जोड़ जपाटे रहते हैं ना साले, ये ले लेके आते हैं। तो हम फिर क्यों आए? हम तो मुंह में बोलते रहे, हम क्यों आए तुमको? अरे तुम जाओ ना उसकी पूजा पाठ करो, फिर इसकी पूजा पाठ करो। उस जो भूतरे तुम लाते हो उसकी पूजा पाठ करो, हमको भूल जाओ। इसलिए हम आना बंद हो जाते हैं। लोगों को ऐसा होता है ना कि देव नहीं आ रहे, देव नहीं आ रहे। तो गलत करना किया ना तूने, खाना पीना तो बंद तूने किया नहीं जीवन भर, और तूने उम्र के साथ तू भुगत रहा है तो भुगतना पड़ेगा। तुमको अभी ऐसा है अपने निमाड़ में, तुमको बहुतों तो देखा होगा कि अभी भी बहुत बहुत बड़े बड़े गद्दी वाले ऐसे ही बैठे हैं, और जो गद्दी करते थे उसका नाश हो गया है। कुछ बीमारी आ गई है या कुछ ये हो गया या घर में पैसा नहीं है, आ गई ना, कुछ ये हो गया वो हो गया, क्यों हुआ? अरे देव ले बैठते उसको, हम ही ले बैठते। क्यों ले बैठते? तूने गलत सत्य मार्ग में नहीं, हम आते हैं शरीर में। मैं हर किसी के शरीर में आता हूँ, इस निमाड़ के क्षेत्र में हर किसी के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। लेकिन मैं ये बोलता हूँ पुत्रहोन सत्य के राह पर चल जो, पुत्रहोन सही राह पर चुनना, गलत राह पर नहीं चुनना। वरना गलत राह पर चुनोगे आज नहीं तो कल तुमको भुगतना पड़ेगा। न भुगतना पड़ता है, ये सब चौका भिलड़ बोल रहा है। बोलो राजा धीरा राजा पति महाराज भिलट देव की जय। तो पुत्री जब ऐसा मेरा जयकार लगता है ना तो उधर से यहाँ पे जान निकल आती है रे, इतना बड़ा जयकार लगाने में, पता है ना तुमको। तो ऐसा ही यहाँ पे नहीं, मैं स्वयं पगड़ी वाला महाराज आकर विराजमान हूँ। मैं आ जाए कितने देव है, भिलट देव आ जाए कितने भी, मैं पीछे नहीं हटता, सामने वालों गिरा दूं, मैं वो देव हूँ रे। मैं कल धुलने लगने लगा ना तो तुम जितने भी बेटे हो ये सारे इतने को मैं धुला सकता हूँ अकेला। पता है ना मेरी नागनियों और मेरे जो देव, बहुत सारे अनेक देव है मेरे निमाड़ में। एक देव नहीं अनेक है, अनेक अनेक स्थान पे अनेक है ना, नागिन अनेक है ना, पद्माई की जोगनियों अनेक है। तो फिर सभी आ जाती है। और ऐसा नहीं, जब मैं घूमता हूँ ना तो फिर तो वो शक्ति प्रवेश होती है रही। ऐसे नहीं मैं घूमता, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं घूमता थी किसी को मैं परेशान नहीं करूँ। मतलब जो इनके पास जो देवी है, जो यहाँ पे झाड़ है, वो क्या है उनको परेशान नहीं। वरना मैं अपन जब अपने आप को सामने वाला महान समझता है, बात सुनो, अपने आप को पहले तो सामने वाला महान समझता है, हम हमारी शक्ति का फिर उपयोग करेंगे रे। तुम ऐसा मत समझना क्या शक्ति नहीं है, अरे अनंत काल शक्ति पड़ी हुई है, ऐसा समझने की तुम भूल मत करना पुत्र हो। तुम्हारा नांगलवाड़ी का भेलड़ देव है ना, यही तुम्हारे जो निमाड़ के क्षेत्र के जितने भी बड़े भूए है ना, सभी को मैं घुमा सकता हूँ। इसकी ताकत नहीं कि मुझे आके डगमगा दे। जो जब आऊँगा ना मेरे पुत्र में हाजराहुर में, ऐसा देव नहीं, हाजराहुर देव, तो वो जो सामने वाले को शरीर में ही नहीं आएगा उसका देव। बहुतों को देव भेड़ आता है, नहीं आता यहाँ पे। क्यों नहीं आता? उसका देव नहीं आता क्योंकि पता है सत्य नहीं मांगा। कोई क्या, अरे कोई मुझे क्या इधर से उधर कर देते हैं, पता है ना तुमको, इधर से उधर कर देते हैं। और बाबा को देख के तो मूठ मारने वाले तैयार होते हैं, बाबा को तो वो जल्दी मारते हैं ना रे। तुम घाट नहीं लड़ जाते हो तो बाबा को देख के तो भाई ऐसा कर, बाबा है बाबा, अरे बाबा जब धरता है ना तो शमशान बना देता, शमशान में ले जाता है। हालो हाचू बड़े तने बाबा तने